हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज है संडे एंड भाजी आए हुए हैं पंजाब तो अराइव टुडे अर्ली मॉर्निंग। सवेरे मैं कहना सवेरे 7:30 हाँ 7:30 पौने 8 बजे भाजी एग्जैक्ट टाइम की लोड ही नहीं यार, वैसे कोई अंदाजा दस दो यार। 7 तो 8 सो गाइस, मैं भी कल रात को बहुत लेट घर आया था, 2-2:30 बजे, तो सुबह का कोई प्लान नहीं बन पाया। अभी 11:30 हो रहे हैं, अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं। आज मैं भाजी ਨੂੰ गोपाल के छोले भटूरे खिलाता हूँ, अवंती का गोपाल के छोले भटूरे। They are like really nice. आज भाजी, what mode this car is running? This car is running Red seat belts and red seat belts, red steering wheel, full and VRS ambient light and hydro dip interior parts. ये देखो VRS का इंटीरियर। Oh yeah. This entire car is blacked out with the red and black Yeah. seats. Because this is These are cosmetic things. This is not what everyone is looking for. exactly. So But this car is running a full system damper exhaust. ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? This is VRS dampers with the IBAC loading springs. That's why. Same setup, almost the same setup as my car. This car will be, the owner of this car will be selling it very soon. All right. And he is upgrading to a VRS now. Oh great. So Why don't like stay tuned for that car as well. Even Why that don't- car is going to be that VRS is going to be very special. so why don't just slap in like DQ250 and IS38 in the car and See, it's a NGT का जो scene है ना, Oh. BS4 and all these things. Yeah, and I got the it. owner is like sick and tired of that, so he wants to upgrade to a car which is BS6. You know which car will be coming next. yup. So mainly मतलब point वही है ना कि what's the point कि सर्दियों में आप 2-3 महीने गाड़ी नहीं चला सकते दिल्ली में। तो समर्स में तो कोई NGT का इशू नहीं है, बट मेनली हाँ क्यों पुलिस वाले समर्स रोकते नहीं है कि गड्डी को? BS3 BS4 वाला रूल नहीं है ना उस टाइम पे। ग्रैब 3 ग्रैब 4 नहीं ना लगता उस टाइम पे। ओके हाँ। Moreover, this car is a UP registered car, so when सीधे 15 साल दी होनी है। RC is 15 years, but as if you know that grab under grab 4 all BS4 petrol। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, outside ਇੱਧਰ of ਉੱਧਰ NCR। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਕਰਾਉ ਕਰਨਾ ਮੈਨੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ अच्छा, anyways, back to the point. This car is running a full Miltech system. oh really? Yes. Miltech designed for the VRS, right? Not 1.8. Yes. So this car is running ਭਾਜੀ green ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ। My bad. This car is running a Miltech downpipe with a full silencer house. Makes one of the best exhaust systems in the I NCR know the region. handwork, the craftsmanship is craftsmanship is excellent. unmatched, Yes, unmatched. no one can do that. भाई, you- Custom ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਹੈ the main reason the Miltech and the other brands are expensive because of the custom and import duties plus ਭਾਜੀ This car has a DQ plus as well. the main reason the Miltech and every exhaust is expensive because of the custom duties and the handwork in the origin countries of the exhaust is very expensive. No doubt. वहाँ हाथ का काम बहुत महंगा है guys. Shout out to DLP, Dreamlight Punjab, one of the best Hi. communities, car communities in Punjab. Yes. Do check them out. We host one of, if not the best car meets in Punjab. They will be doing a meet very soon. बहुत subtle exhaust है। Oh, and yes, this car is running pops and bangs as well. And it But then shoots they- flames. It's not about option man, it's about That's not. oh my god, DV. This is a very special. It feel like car is talking to you, right? Yes, I'm happy you are flooring me. This is a very special car. It's a very मतलब very tastefully and मतलब बंदे ने बहुत ही प्यार से गाड़ी बनाई है। मेरी ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੰਡੇ, ਬਟ ਪੁਲਸੀਏ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਜੀ ਥੋੜੇ यार भाजी मेरा ਉਹਨਾਂ बहुत ਦੇ- अच्छा है, पंजाब पुलिस से गाड़ी के उठा ਕਿ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਓਏ ਦਬਾ ਲਓ। पंजाब पुलिस से पटे सारी थाना ते मशहूर ने जट वैसे This is 340 mm brakes?
नहीं, this is stock 310 with EVC yellow stuff with slotted and drilled totals. ओह नाइस There's an intercooler as well on this car. गाइस, ये चीज़ देखने में बहुत अच्छी लगती है। जैसे जैसे रिफ्यूलिंग हो रही है, गाड़ी पीछे जाती रहेगी पेट्रोल पंप से। ये पेट्रोल पंप और दूर होता जा रहा है। कितना ਦਾ ਭਰਵਾਇਆ ਭਾਜੀ? 2000 ਦਾ। ਬਸ ਉਹ 2000 ਵਿੱਚ 190 किलोमीटर ही पीछे जाएगी। यार ठीक है, हमने सिटी में गाड़ी चला रहे थे 7 की एवरेज। गाइस, हमने गोपाल जी के छोले भटूरे ले लिए हैं। हमें हाफ एन आवर लग गया लाइन में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज संडे होने के कारण। गुड है। मैं चाहता था कि दीपिंदर फ्रॉम पंजाब ट्राई करें दिल्ली के अच्छे फ्लेवर्स। भाजी पंजाब से मिलते हैं मेरे छोले भटूरे? पंजाब के इसको भी बढ़िया मिलता है यार भैया। भाई अमृतसर का, फिर अमृतसर इज अ लैंड ऑफ कुलचास राइट? अमृतसर का फूड यू कैन नॉट टॉप। एक ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਯੈਸ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਹੈ। When it comes to food, you cannot compare anything with Amritsar. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। Food is top here. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਚੱਲਾਂਗੇ ਭਾਜੀ। ਫਲਾਈਟ ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ? 1.5 ਘੰਟਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ 6:30 ਦੀ 6:20 ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ। 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਓਹ ਨਾਈਸ। It was nice. ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ। ਚੈੱਕ ਇਨ ਲਗੇਜ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੈਂਡ ਕੈਰੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ if you're going to come here by car, our cars are going to drink quite a bit of fuel. Easily, like ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰਕੇ I think so we will be spending around 10,000 on the fuel. ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਦੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਵਾਂਗੂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਰਕੇ I think so you would be spending around 10 at least on the fuel, and flights are much better here. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। Amritsar to Delhi flight is what 3-5,000. ਬਸ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਪਸ, even when I was working here. I would book a flight at night couple of days before and I will go 1.5 hour I would be there at home. ਬੈਸਟ ਹੈ ਭਾਜੀ। Totally worth it. Which Vistara, Air India Express, Indigo? ਪਹਿਲਾਂ there used to be someone in Air India. ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? Air India or Indigo ਵੀ last time I think I flew in Indigo. आई थिंक पता नहीं हैगा सी। हाँ Indigo कुलचे खा लिए। गाइस कुछ खा लेते हैं। गाइस कुछ खा लो और खाने दो भैया को भी, ब्लॉग से फुर्सत मिलेगी तो कुछ खा लेंगे। अरे नहीं यार, व्लॉग ऑलरेडी पीपल इन द व्लॉग्स आर लाइक फैमिली राइट। चलो गाइस कुछ खा लेते हैं। They're good. गोपाल के ना, हाँ गाइस 10 on 10 must try it. शुक्र है भाजी कुछ पसंद आया दिल्ली का। यार दिल्ली में चीज़ें काफ़ी पसंद आई हैं। चलो लेफ्ट होना है इधर जल्दी। फक Pops and bangs। Pops and bangs है, wait I'll show you। भाजी सारी पुलिस लाइन आई है, रहन दो। This is a whole पुलिस वाला होता है चलान काटता है, चलान काटता है। Pops and bangs are only in S. That's great, just like Revo, right? Only in S. Say that's safe। यार देखो परफॉर्मेंस ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫੈਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਔਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੂਲਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। See one more thing, the car will not give you peak boost until the oil temperature is at its ideal running conditions. At 70 70 After दो 75 the car will give you proper boost. परफेक्ट। Before that it will not boost up. The maps are very refined. They make sure that the hardware is safe. यस यार गाइस, कोई भी सेलर अपनी चीज बेच रहा है, उसको एक अच्छी चीज बनानी, द माइंडसेट दैट ही हैज टू कैप्चर द मार्केट राइट। ही हैज टू गिव एवरीथिंग द बेस्ट एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल that for the tune which is running in the car। I have made sure that we have every possible, safety measures.
buying the car is the easiest part. एग्जैक्टली But maintaining and understanding a German car is a all गाइस different level. एक और बात बता देता हूँ, लोग सुपर्ब्स ले लेते हैं 7-8 लाख रुपए की। जब भी आप यूज्ड कार लेने जाओ, एक ही मेंटालिटी के साथ जाओ कि आप गाड़ी 7-8 लाख रुपए की नहीं ले रहे, आप गाड़ी ले रहे हो 30 लाख रुपए की, जबकि वो उसका प्राइस जब वो नहीं आती थी, वो न्यू कार आप खरीद रहे हो क्योंकि उसकी मेंटेनेंस 30 लाख रुपए के हिसाब से होगी, 6-7 लाख रुपए के हिसाब से नहीं होगी। देखो गाइस, जर्मन कार्स में एक ही फंडा होता है, ये या तो 100% ढंग से चलेंगी या तो फिर लिम्प मोड में चली जाएंगी। इसमें ये नहीं होता कि हाँ यार जुगाड़ से चला दी, ये कर दी, वो कर दी। गाइस आइदर 100% और नथिंग। सो इफ़ यू कीप देम वेल मेंटेन्ड एंड जो चीज़ जो मेंटेनेंस है, अब DSG का DQ250 का ऑयल चेंज इंटरवल 60,000 है, DQ381 का 90,000 है, कुछ गाड़ियों में 1,20,000 भी लिखा हुआ आता है। आप तब चेंज कराओ ना, आपका आएगा बिल 50-60 हज़ार रुपये का, उस टाइम ज़रूर आएगा। बट अगर आप नहीं कराओगे या बाहर से सस्ते ऑयल डलवा लोगे, फिर कहोगे यार 60,000 रुपये में गियर बॉक्स उड़ गया, मतलब वो चीज़ें नहीं, वो That's on to you. या दैट इज़ ऑन टू यू। बिकॉज अब मेरी Q3 की नेक्स्ट सर्विस होनी है, उसमें एक जो हमारी बेल्ट है, जो आपकी ऑल्टरनेटर बेल्ट है, उसका एक बेरिंग भी कह रहे हैं चेंज होना है, मैंडेटरी है। वो VRS में नहीं था, ये Gen 4 इंजन में मैंडेटरी है। 16,000 रुपये का बेरिंग है। अब मैं चेंज करवाऊंगा, मैं इसलिए चेंज नहीं करवाऊंगा कि मैं नहीं चेंज करवाऊँ तो कंपनी वारंटी नहीं देगी, तो मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। मैं इसलिए चेंज करवाऊंगा क्योंकि वो उसके इंटरवल में और वो मुझे चेंज कराना ही है। गाइस एक बार मेरे घर आए हुए थे, थोड़ी सी चाय वगैरह पी रहे हैं। गाइस हम GT जा रहे हैं, हमारे साथ जतिंदर भाजी भी है एंड आज वहाँ पे 2 काम होने हैं। पहला काम हमारा है कि अथर्व अपना भाजी लग गया पता ही यार 20 पे हुए ने। अथर्व अपना गियर बॉक्स स्टॉक कर रहा है और अथर्व ने DQ250 पे कन्वर्ट करना है, तो उसका भी DQ200 लगा हुआ है। बट वो स्टॉक फर्मवेयर फ्लैश करेगा, इमोबिलाइजर होता है उसमें। अगर वो अपना गियर बॉक्स ऐसे ही किसी और गाड़ी में लगा देगा तो उसका गियर बॉक्स नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी गाड़ी में, उसकी गियर बॉक्स में उसकी गाड़ी की इमोबिलाइजर की सेटिंग है, तो उसको पहले स्टॉक करना पड़ेगा। हम उसका गियर बॉक्स स्टॉक करने जा रहे हैं, स्टॉक फाइल फ्लैश करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरे ब्रेक पैड्स हैं, मेरे हिसाब से 50% 40% रह गए हैं एंड मैंने US से हैंड कैरी करके ब्रेक पैड्स लाया था, फ्रंट और रियर हमारे DBA के स्ट्रीट परफॉर्मेंस है एंड जो फ्रंट है वो ECS ट्यूनिंग के परफॉर्मेंस ब्रेक पैड्स हैं। तो वो देखते हैं, अगर मेरे ब्रेक पैड्स की कंडीशन ख़राब हुई तो वही GT जाके चेक कर लेंगे, तो ब्रेक पैड्स हम चेंज करेंगे। वही करते हैं GT डिलर्स में। कर दो भाजी। गाइस हम पहुंच चुके हैं GT ट्यूनर्स। भैया पता नहीं ऑक्टाविया कौन लगा के चला गया अपने। पता नहीं भैया क्या पता नहीं यार, दिल्ली वाले भी ना क्या लिया मैं टॉक, ओ माय गॉड। यार मैं साइड करवाता हूँ, पता नहीं। Oh no, Raja Bhaiya Dawn is coming. गाइस चलते हैं अंदर। भैया एक बार पार्ट चेक करना यार। हाँ भैया अभी तो ठीक है। ठीक है अभी कितने चल जाएंगे अभी? 40% माल है इसमें। अरे गाइस फिर इसको ना चलो एक बार फ्रंट भी चेक करा लेते हैं राजा भैया से। राजा भैया एक बार चेक करना यार फ्रंट भी। 30% है अभी गाइस, फ्रंट भी 30 है। तो जब नेक्स्ट टाइम जब पाओगे ना तो उसके साथ डिस्क ट्रेन करानी पड़ेगी, अगर चेंज कराना है। अच्छा करानी पड़ेगी, ट्रेन कराना ठीक है वो आप ही करवा देना यहीं पे। और राजा भैया कितने किलोमीटर चल जाएगी और अभी? वो तो डिपेंड करता है आपके ड्राइव पे कि ब्रेक कैसे यूज करते मतलब 5,000 बार चेक करा लूँ? 5 मैं आपको बोलते हैं वेरिएंट डिवाइडर आप कैसे ब्रेक मार। मेरे पहले ब्रेक पैड चले थे 28,000 किलोमीटर, मेरी सारी हाईवे रनिंग है, तो अभी मेरे ख्याल से 5,000 बार चेक करा लूँ। 5 तो कहीं नहीं, आप 3 पे चेक करो। 3 पे मैं एक बार आके चेक करा लूँगा आपसे। ठीक है भैया गाइस चलते हैं, थर्फ से भी मिलते हैं। हाय माफिया मैन। यार क्या सरदार जी, यार क्या हाल है भैया, 1 घंटा लेट।
सही कह रहे हो, ये बंदा कह रहा था पहले 1 बजे आ रहे हैं फिर 2 बजे आ रहा हूँ। मेरी हाइट का बंदा है जो मेरा भाई लंबा है भैया यार। बोला था लड़के ने रखने के लिए, तो आपने भैया मेरी गलती भैया, मेरी गलती भैया। नहीं गलती नहीं, कल को पिंचे में या कुछ हुआ तो फिर आप बोलोगे यार गोटी को। मेरे पास 2 है भैया। मैंने ना व्हील नहीं मजाक कर रहा हूँ। मैंने व्हील स्पेसर्स मंगवाए थे, उसके साथ एक आई थी और मेरी फिर पहली वाली गुम हो गई थी। हाँ तो इसको हम रख लेते हैं, कभी आप आओगे तो हमसे ले तो लोगे कि भैया नहीं मिल रही मुझे, पोर्टर कर दो, पोर्टर कर दूंगा आपको। ये ऑक्टाविया किसकी है गाइस? GTB ऑटोमोटिव। प्रतीक भैया की गाड़ी भैया, यार आई नो द कार स्पीक्स इटसेल्फ। इट इज DM2 भैया, लेकिन मैंने गाइस प्रतीक भैया की गाड़ी है यार। एक काम करते हैं, देख देख के ना खुद ही मॉडल लिस्ट बना लेते हैं हम। भाई मुझे यही लग रहा है कि प्रतीक भैया के इंडिया में रहते नहीं है सारा टाइम। गाइस बहुत टेस्टफुली बिल्ड कार है, बहुत प्यारी लग रही है। भैया वो दिखाओ भरत सर की सुपर्ब। 72 क्या कह रहे हो? इतने मेरे मैथ्स में नंबर आते थे 72। आज दीपिंदर पाजी भी GT आए हुए हैं। ब्रो फर्स्ट टाइम हियर थर्ड टाइम इन दिस वर्कशॉप? नो इन दिस वर्कशॉप। हाँ, पहले नीतीश के साथ आया था 1-2 बार। ओए एंड लिंक्स भैया, एंड लिंक्स है भैया, स्टार्ट लिंक्स भी आती हैं कोई? आपको पता होगा ना, आप इंजीनियर आदमी हो। राजा भैया बताएंगे इस क्वेश्चन। राजा भैया जैसे एंड लिंक्स हैं, कोई स्टार्ट लिंक्स भी आती हैं? नहीं हैंडलिंग ही होती है। ओह अच्छा। एंटी रोल बार डल रहा है एंटी रोल बार डल रहा है, लिंक रोड इसमें। VRS मनदीप भैया उसको स्मार्ट लिंक कहते हैं। इसमें VRS वाला डल रहा है। बुशेस अलग से नहीं आते इसके? ARB के बुशेस अलग से नहीं आते। ये पंचिंग होती है। अच्छा वो कराने पड़ते हैं, फिर खरादिए से कराने आफ्टर पड़ेंगे। मार्केट डलवाते हैं बुश, उसके बाद क्या होता है गाड़ी को आप लेफ्ट राइट काटते हो, बुश भी साथ में भागते हैं, फिर बोलते हैं गाड़ी में आवाज आ रही है यार, तो इसकी वजह से बेसिकली अच्छा। पंच होते हैं। गाइस राजा भैया ने मेरी गाड़ी ठीक कर दी, अब बिल्कुल कोई आवाज नहीं है मेरे एंटी रोल बार में। साथ में ये वाले भैया और ये वाले भैया ने भी बहुत हेल्प करी थी। आवाज कैसे हुई? आपकी आवाज ठीक है, गाड़ी की आवाज भैया आपका गला खराब हुआ था। हाँ मैथमेटिक्स इन्होंने सब ओके कर दिया भैया ने। भैया बिल्कुल जीरो आवाज, बिल्कुल जीरो आवाज, बिल्कुल ओके हो गई। और एक और चीज बता देता हूँ, अलाइनमेंट भी 1% आउट नहीं हुई। वैसे देखो हमारा क्या होता है कि कराना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी हाँ भैया वो तो है ही। 20 अलाइनमेंट आउट, आप लॉन्ग ट्रिप पे चले गए, उसमें आपकी गाड़ी के टायर भैया लीक देखो हो गए। आपके पास सारी हाई पावर कार आती है तो बंदे 200 पे भगाते हैं, तो 19-20 का अगर फर्क होगा तो इतनी स्पीड पे पता चलेगा, इसलिए आपको बोलना पड़ता है। वैसे सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए कस्टमर के पैसे बच रहा। अगर फॉर एग्जांपल आप चले गए लॉन्ग ट्रिप पे चले गए, अब टायर आपके वेयर हो गए तो हाँ। वो बेकार है ना। बिल्कुल, तो समझ गया। अलाइनमेंट करने में टाइम ही कितना खराब होता ठीक कैसे करी ये तो बताओ। है। इनकी आवाज ठीक कैसे कर दी वो वो रात तक आप रुके थे। वो OEM प्लस OEM प्लस जुगाड़ किया हमने। OEM प्लस जुगाड़ कर रहा है। पता है क्या, कोई भी अच्छी वर्कशॉप अलाइनमेंट मतलब सस्पेंशन के काम की बात बताती है। पाजी देखो, मेरा मानना ये है कि अगर आप Any good workshop will tell you। सस्पेंशन का आगे कोई भी पार्ट खोल रहे हो तो भैया डांडिया खेलने वाले हो इससे? अलाइनमेंट जो है ना ये कंपलसरी है। भैया डांडिया खेलने वाले हो नहीं इससे? डांडिया गाड़ी खेल चुकी थी, बंद करा हुआ है डांडिया। काफी वर्कशॉप नहीं पता है the reason being हाँ चलने ना होता the reason being I had sub frame alignment kit racing line में। फॉर द That's why। बेसिकली क्या है कि हम कभी कभार ये भी करते हैं कि ज़्यादा स्टीयरिंग का ज़्यादा एंगल आउट है तो उसको हम थोड़ा मिला के बेचते हैं हाँ। कस्टमर को, जो मतलब सेफली वो अलाइनमेंट की दुकान तक चले आए। मगर अलाइनमेंट में क्या होता है, मशीन से 0-0 मैच होती है। बिल्कुल भैया। तो हम यही रिकमेंडेड करते हैं कि सस्पेंशन में कोई भी काम होगा तो आप अलाइनमेंट जरूर करें। बहुत प्यारी वर्कशॉप बनाई। गाइस दोनों है या फ्रंट है सिर्फ? गाइस ये रियर ब्रेक पार्ट्स है, ये DBA के पहले स्ट्रीट सीरीज आती है, दीज आर स्ट्रीट परफॉर्मेंस। इनसे ऊपर जाएंगे तो स्क्विकिंग साउंड आएगी, वो ट्रैक यूज़ के लिए होते हैं। अच्छा। और आइडियल फॉर OE अपग्रेड परफॉर्मेंस कार, SUVs एंड 4-wheel ड्राइव्स। गाइस ये एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये जो गोल्फ R आती थी, गोल्फ R MK7, यस, ये जो गोल्फ R आती थी ना, देखो गोल्फ R और S3 का प्राइस लगभग सेम है, तो लोग S3 लेते हैं बाहर। जो गोल्फ R है उसके ही इसके रियर वो हैं, क्या कहते हैं, कैलिपर्स,
कैरियर्स और ब्रेक रोटर्स। हाँ तू मतलब ये लगा लो MK7 गोल्फ आर आई थी 2015 वाली और उस टाइम उसके पीछे वेंटिलेटेड डिस्क आती थी Gen 3 आया था जिसमें और हाँ एग्जैक्टली और इलेक्ट्रिक पार्की ब्रेक आते थे, तो उसी का ब्रेक पैड और इसके ब्रेक पैड का पार्ट नंबर सेम है। ओके तो गाइस ये इंस्टॉल करेंगे, जो कि आज नहीं करेंगे। राजा भी है ने देखी थी हमारी ब्रेक्स, तो अभी है इसमें 40%। ये हैंड कैरी करके लाया यूएस से। अब हाँ। हम आए थे दिसंबर में, आए थे नवंबर में आए थे, अभी है जनवरी में। जनवरी में दिसंबर नवंबर में गए थे। और गाइस ये हमारे फ्रंट ब्रेक पैड्स भी मैं हैंड कैरी करके लाया था अच्छा फ्रंट ब्रेक पैड भी लाया हो? ECS ट्यूनिंग के। DBA के क्यों नहीं लाए फ्रंट? यार ये परफॉर्मेंस सीरीज है तो इस पे ज़्यादा अच्छी डील मिल गई थी मुझे, तो ये मुझे डिफरेंस नहीं आएगा अगर ये परफॉर्मेंस सीरीज है और वो स्ट्रीट है तो? भैया वो भी स्ट्रीट परफॉर्मेंस है, वो स्ट्रीट सीरीज नहीं है, एक स्टेप ऊपर है। Okay. और ये भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। हाँ आगे पीछे कॉम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि ब्रेक रेशियो हमारी ऑल व्हील ड्राइव की 60-40 है इसकी। आगे 340 mm रोटर्स है और पीछे 310 mm रोटर्स है, 30 mm का फर्क है, तो ये उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड हम आगे और पीछे एक स्टेप ऊपर जाएंगे ब्रेकिंग में। गाइस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उरुस और RS Q8 में सेम इंजन है, सब कुछ सेम है। जो RS Q8 है वो 200 किलो भारी है उरुस से, बिकॉज जो उरुस है उसकी फाइबर बॉडी है, RS Q8 की मेटल बॉडी है। अरे भाई गाड़ी के बारे में बात करें कब ना, जन्मदिन है भैया का। किसका जन्मदिन है भैया? हाँ आ जाओ भैया, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे उस्ताद। अच्छा भैया हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राजा भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। आगे भी होता है हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू। जितना आया उतना बोल दिया गया। गाइस लो भाई, हाँ बाजी। आओ पाजी आओ। पहले मैं खिलाऊंगा भैया, आपका बर्थडे है पहले अरे मैं खिलाऊंगा। ऐसे अरे थोड़ी। नहीं नहीं ये क्या कैंडल खिला दी? मैं बोला कैंडल खिला दिया। अरे लाओ। ये फिनिश करो ना भाई। ऐसे थोड़ा भैया फिनिश तो करो। राजा भैया कितने साल के हुए? 40 40? मैं 30, मैं इसी साल 30 का हुआ हूँ। अच्छा मैं 40 होगा भाई। अब दीपेंद्र हमारी गाड़ी जो है स्टॉक करने वाला है यार। दीपेंद्र थैंक्स मैन, आज जो तो कर रहा है ना भाई, दीपेंद्र इज द मैन। फॉरएवर ग्रेटफुल भाई। भाई कोई बात नहीं, भैया आप नहीं कर रहे थे स्टॉक? यार वो अभी यस अच्छा आपका इंटर्न है वो। ऐसे पीछे क्यों हो? गाइस हमने स्टॉक कर दिया है अथर्व भैया की गाड़ी, थैंक्स टू दीपेंद्र बाजी। दीपेंद्र बाजी ने विश्वास दिखाया, हाँ और हमने काम किया और साथ में DQ200 से DQ250 कन्वर्ट होगा। ये हम ट्यून डलवाएंगे, उसमें हम देखते हैं कौन सा ट्यून डलवाते हैं। फाइनलाइज करेंगे अभी ट्यून खाना। अभी देखते हैं, लेट्स सी। जब गाइस रिमूव करते हैं लैपटॉप ऑटो ट्यूनर को, हमारा आज का काम हो गया। एरर था लॉस्ट कम्युनिकेशन में TCM, वो जब हमने स्टॉक करी वो एरर आया था, अब हट गया है, हमने DTC स्कैन कर दिया है। तो And now our car is TVS Stage 2 ECU And- with no TCU. Yes. With no TCU. तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी डी पे पावर कट करेगी गाड़ी। हाँ सिर्फ स्पोर्ट में भागी, वो भी झटका दे देंगे। हाँ भैया जब मैं यस बोल रहा हूँ हाँ नहीं होगा, नहीं नहीं ब्रदर आई वाज टॉकिंग अबाउट DQ250। अच्छा ऑन हाँ, डिकी 200 पे तो पावर कट करेगा। चलो मैं स्टार्ट कर दूँ। 250 में कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ एक बार ऑन करो, इग्निशन में डाल दो। ऑन कर दो भैया गाड़ी। गाइस EPC की लाइट इज गॉन नाउ। Now should I take this from the OBD port? यप बट भाई वो क्रैश था, उसके बाद मैंने बाइक को हाथ मारा। यही होता है मेरे में, इतना नहीं है कि मैं वैसे बाइक पे बैठ के ना बाइक 18 गाइस दीपेंद्र भैया बता रहे हैं उनका बाइक एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने गियर पहनी थी, तो ही इज राइट या ही सर्वाइव एंड ही इज ऑल राइट नाउ। एंड इनकी सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, आप सब भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके ही गाड़ी या बाइक क्योंकि गाइस कुछ पता नहीं होता हाईवे पे कौन एकदम लेफ्ट से राइट मोड़ दे, काट दे, कुछ कर दे। व्हेन यू आर ऑन योर बाइक यू आर ऑन योर ओन। मैंने ये लाइन पढ़ी थी बहुत पहले। जब बाइक पे हो ना
get out of the mentality that everyone is out there to kill you. ये बाइक पे ना ये mentality होनी चाहिए कि हर एक बंदा लेफ्ट राइट सेंटर आपको मारने के लिए बैठा होगा, तभी सेफ रहोगे। एंड गाड़ी में भी सीट बेल्ट पहन के ही रहा करो। मैं तो हमेशा यार ही रहता हूँ एक्सीडेंट्स कि कैन अगर- हैपन एनी टाइम। बट फिर भी जो हम अपने पार्ट पे कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये नहीं कि ट्रैफिक लॉ कहता है हाँ। इस पर मुझे भैया एक बात समझ नहीं आती है, पंजाब साइड किसी भी साइड चाहो, चंडीगढ़ साइड या दिल्ली में भी हाँ। अभी रूल आया कि पीछे वाले को भी हेलमेट हाँ, पहनना है, राइट? हाँ। पहले रूल ही नहीं था पीछे वाले को हेलमेट पहनना है। यार जब गिरेगा तो पीछे वाले को नहीं लगेगी क्या? और क्या? गाड़ी में पीछे की सीट सब मैंडेटरी हुई है। एग्जैक्टली, सीट बेल्ट और सीट बेल्ट वार्निंग भी मैंडेटरी हो गई है गाड़ी में पीछे। ऐसे तो ये थी दीपेंद्र की बाइक। दिस वाज 2 cylinders V20 between 2 cylinders, right? यार एग्जॉस्ट साउंड भी अच्छी आती है 2 भाई cylinder it की। was beautiful। गाइस यहाँ पे एक 718 भी आई हुई है Cayman। ये बॉक्सटर का नॉन कन्वर्टेबल वर्जन है। 4 सिलेंडर। बस गाइस काम हो चुका है सारा। गाइस निकलते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, अच्छे कंटेंट आते रहे भैया। पार्टी क्या, घर पे बच्चों के साथ बैठेंगे। हाँ भैया, सबसे बढ़िया पीसफुल फैमिली के चीज़ साथ है, में सबसे बढ़िया उससे बढ़िया सुकून और सुख है ही नहीं। दोस्त के कितनी जिंदगी में बैठे ही बैठे, फैमिली के साथ बैठे। ओके भाई। ओके बाय भैया। द पोर्शे इज़ द परफेक्शन एंड इससे अच्छी गाड़ी ड्राइव फील चलाने में कोई है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। एवरीथिंग इज इंजीनियर्ड, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। ये गाइस मेड इन स्टटगार्ट है, वहीं से बनती है, गाड़ियाँ ऑर्डर पे आती हैं सारी, और किसी कंट्री में नहीं बनती। मकान वगैरह कहीं और बन जाती है, ये सिर्फ स्टटगार्ट जर्मनी में बनती है। गाइस ये प्रतीक भैया की गाड़ी है, मैनुअल M2 एंड ये GT पे है। आई थिंक सर्विसिंग वगैरह के लिए आई हुई है। बहुत क्रेजी स्पेक है गाइस, एग्जॉस्ट बहुत लाउड है। DQ200 ऑयल फिल्टर असेंबली तो नहीं होती ना? नहीं, that is inside the side पे body the view ना। ओके, बिकॉज दैट DQ200 के अंदर जो आपका ऑयल फिल्टर है, that is inside your valve body slash mechatronic body। यस, बिकॉज दैट्स व्हाई कंपनी सेज ना ऑयल इज नॉट चेंजेबल। That is why in China you can get the upgraded valve body as well। DQ200 दी? For the DQ200, so that your DQ200 doesn't die prematurely। अच्छा। दीपेंद्र कह रहा है he wants to work here। हैं? हाँ। अरे भाई कट करो कट। नहीं बाजी, ये तो कट नहीं होएगा। चलो भैया निकलते हैं फिर यार। नीड मनी फॉर कार पार्ट्स। जो थर्ब की गाड़ी में लॉयस लगे हुए हैं वो मेरी VRS में थे, मैंने लिए थे जब जिस दिन मैंने कार की डिलीवरी ली थी, तब मैंने सेम डे ही अलॉयज लिए थे। तब ये सैटिन ब्लैक थे, उसके बाद ये पता नहीं गाइस कितनी बार पेंट हो चुके हैं, अलग अलग कलर्स, और काफ़ी लोग के पास जा चुके हैं अलॉयज। एट द लास्ट ये हमारे सर डिजर्विंग है वो। हाँ बेस्ट अलॉयज इन द वर्ल्ड बेस्ट मनदीप सिंह MS लिख दो भैया मेरे लॉयज पे। यार। एक बार मैं बैठ के देखता हूँ, आप कह रहे थे ना स्पॉन्जी है गाइस, एक बार बैठते हैं इनकी गाड़ी में, कह रहे थे ब्रेक का पेडल थोड़ा और ऊपर आने दे, चेक करते हैं। Let's meet soon। बाय भैया, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। कल आ जाना शाम को। आई ट्राई माय बेस्ट। यस, अभी बताना बस किस चीज़ के लिए। हाँ हाँ, अभी क्या भैया, ये व्लॉग उसके बाद ही डलेगा। ओह नो। मैं इंसानों की तरह बात करो, दोनों कैमरे ऐसे पकड़े, अरे भाई क्या हाल है? अरे भाई, अरे कोई बात नहीं यार, बहुत चली गई। चलो गाइस निकलते हैं, दीपेंद्र भैया साथ में जा रहे हैं, दीपेंद्र भैया साथ में जा रहे हैं। यस, और अमर भैया अपने घर निकल रहे हैं। चलो भैया ओके सी यू बाय बाय।